Hello and welcome to 3.TV. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. We have got all the major global cryptocurrency news from the past week for you in this show. But before we start, let's cut across to Manoj for the market check. So if we talk about the overall crypto market, Bitcoin and the other big cryptos took a hit on Friday, and market participants are concerned about the US tariffs, and which has made investors less willing to take investment bets. And a lot of economists are concerned that these tariffs could drive up inflation, making it harder for central banks to help struggling economies. Why we are saying this? Because this week global leaders were also sounding cautious during the central bank meetings, with a lot of focus on the uncertain political and the economical climate. For example, the US Federal Reserve, the Bank of Japan and the Bank of England also decided to keep interest rates the same, pointing to concerns about the trade tensions and inflation going forward. If we talk about investors are confronting an increasingly cloudy outlook for the global economy, with President Donald Trump planning a series of broad reciprocal tariffs on the April 2nd, and this is the pain point for the market, and it will remain as a pain point for the market going forward as well. Thank you, Manoj. So SEC drops Ripple case, confident in XRP's US Reserve role and possible IPO, says Ripple CEO. So ये बहुत ही optimistic रहा that recently Ripple CEO Brad Garlinghouse posted a video in his X account that the SEC case जो Ripple के against था वो dismiss हो गया है अब. So ये बहुत ही positive रहा and this was a major victory for Ripple, but this is subject to commission's vote. तो अभी देखते हैं कि आगे क्या decision होता है, but Brad Garlinghouse बहुत ही optimistic हैं इसको लेकर, और वो XRP को देखते हैं digital asset stockpile में जिसकी बात चल रही है, and इसके साथ ही उनका कहना है कि 2025 एंड तक जो है वो यूएस स्पॉट XRP ETF भी अप्रूव हो सकता है. बिल्कुल. इसी के साथ साथ ब्रैड गार्लिंगहाउस ने इस तरफ भी हिंट किया कि जल्द ही रिपल लैब्स का IPO भी आएगा, और ये अनाउंसमेंट आते ही XRP का जो प्राइस है वो डबल डिजिट में जंप किया एंड इट बिकम द थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, फ्लिपिंग टेथर USDT. तो वो भी एक बड़ी बात थी. Moving on, Michael Saylor's strategy acquires 130 Bitcoin at an average price of $82,981. तो यहाँ strategy हम जानते ही हैं, लगातार Bitcoin खरीद रहे हैं, Bitcoin buying spree जो है उनका वो खत्म ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है. तो recently उन्होंने 130 Bitcoins जो है acquire किए हैं for $10.7 million और at an average price of $82,981 per Bitcoin. और बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन SEC के साथ उन्होंने शेयर की है उसके मुताबिक उन्होंने ये बिटकॉइंस खरीदने के लिए अपने शेयर्स 123,000 शेयर्स बेचे हैं फॉर $10.7 million, और उस पैसे से, उस फंड से उन्होंने BTC खरीदे हैं. और जो ये फंड्स, ये जो शेयर्स थे वो 8% सीरीज A परपेचुअल स्ट्राइक प्रेफर्ड स्टॉक्स थे. सो अब ये बात तो बहुत क्लियर है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी को खरीदने हैं बस. अब बिटकॉइन चाहे उसके लिए उनको अपने शेयर्स कितने ही बेचने क्यों ना पड़े. बिल्कुल. तो यहाँ पे इनकी टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो अभी 4,99,226 बिटकॉइंस उनके पास में है, वर्थ ओवर $41.6 billion, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट. तो स्ट्रैटेजी जो है इट होल्ड्स 2% ऑफ बिटकॉइन सप्लाई. हमें पता है कि बिटकॉइन की सप्लाई कैप्ड है 21 मिलियन, और उसमें से 2% से ज़्यादा तो स्ट्रैटेजी ही होल्ड करती है. Moving on, Metaplanet launches 2 billion yen zero interest bond to fund Bitcoin purchases. सो मेटाप्लैनेट, जिसे जापान स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, तो रिसेंटली जैसे अभी हमने बात की कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपना स्ट्राइक प्रेफर्ड परपेचुअल स्टॉक एक सेल्स एग्रीमेंट किया था उसके रिगार्डिंग, और अब मेटाप्लैनेट ने भी एक ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड इशू किया है, ज़ीरो इंटरेस्ट ऑर्डिनरी बॉन्ड, तो जिसके थ्रू अब वो $13.3 million वर्थ है, अराउंड 2 billion yen, और अब वो कुछ और फंड्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं टू बाय मोर बिटकॉइन, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी भी है टू ऐड 10,000 बिटकॉइन टू देयर this 2025 and 21,000 by 2026 end. So अभी recently भी उन्होंने 150 Bitcoin purchase किए हैं. So they are also continuously buying Bitcoin. Right. तो ये 150 Bitcoins उन्होंने खरीदे मेटाप्लैनेट ने. ये खरीदने के बाद उनका जो टोटल Bitcoin stash है that is 3,200 BTC का, which they bought at $266.2 million, which is worth now $265.9 million at the current prices. तो अभी देखते हैं कि आगे वो कितने बिटकॉइंस लेते हैं और किस प्राइस पे लेते हैं. करेक्ट.
So moving on, North Carolina and Minnesota introduced legislation to expand Bitcoin adoption. तो जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं यूएस की बहुत सारी स्टेट्स जो है वो लगातार बिटकॉइन रिजर्व की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो उसी को देखते हुए, उसी ट्रेंड को देखते हुए कह सकते हैं एक तरह से कि नॉर्थ कैरोलिना और मिनेसोटा जो है वो भी इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेशन टू एक्सपैंड बिटकॉइन अडॉप्शन। और अभी नॉर्थ कैरोलिना के जो स्टेट सेनेट है उन्होंने एक बिल पास किया है SB 327, जिसके अकॉर्डिंग ये ऑथराइज करेगा स्टेट ट्रेजरर को एलोकेट करे कि वो 10% ऑफ पब्लिक फंड्स टू बिटकॉइन। बिल्कुल, तो ऐसे ही मिनेसोटा का भी एक बिटकॉइन एक्ट आया है। उनके जो सेनेटर हैं स्टेट सेनेटर जेरेमी मिलर, तो उन्होंने एक बिटकॉइन एक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि जो स्टेट बोर्ड है वो एक्वायर करेगा बिटकॉइन अलॉन्ग विद अदर ट्रेडिशनल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद जो स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स में बिटकॉइन ऐड कर सकते हैं, तो उनको भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो करीब 23 स्टेट्स हैं जो कि या तो प्रोसेस कर चुकी है या तो इन द प्रोसेस है ऑफ बिटकॉइन रिजर्व लेजिस्लेशन। और ये खास तौर पर हुआ जब सेनेटर सिंथिया लूमिस उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एक्ट को प्रपोज किया, जिसके अंडर वो 1 मिलियन BTCs चाहती है कि रिजर्व में रहें। वाह। Moving on, Elon Musk's AI startup and Nvidia joined Microsoft, BlackRock, MGX AI fund. So recently अभी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई फॉर AI सेक्टर, जिसके बाद हमने टाओ या ICP इन सब के प्राइसेस में बहुत सर्च देखा। तो न्यूज़ ये थी कि Elon Musk, XAI एंड Nvidia, द टेक जायंट, उन्होंने ज्वाइन किया है BlackRock, Microsoft और एक आबू धाबी बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड है MGX, उनका एक कंसोर्टियम, जिसमें कि ये सब मिलकर $30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं यूएस के AI इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो एज वी हैव सीन दैट द रेस फॉर टू कॉन्कर द AI स्पेस बेसिकली इज इंटेंसिफाइंग। तो अब जो भी वहाँ पे ये लोग डेटा सेंटर्स होंगे या कुछ ऐसे एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे टू सपोर्ट AI मॉडल सच एज ChatGPT, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये पहला डेटा सेंटर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा बाय 2026 और इट विल हाउस 400,000 NVIDIA AI चिप्स इन Abilene, Texas. So moving on, Russia leveraging crypto for oil trades to bypass sanctions. तो यहाँ रशिया ने अपने ऑयल ट्रेड के लिए जो वो करता है विद इंडिया एंड चाइना, उसके लिए अब क्रिप्टो करेंसीज यूज़ करना शुरू कर दिया है टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस। हालांकि अभी भी जो मेजर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ट्रेड को लेकर रशिया में वो UAE दिरहम में होती है, दैट इज़ अ फिएट करेंसी दे आर यूजिंग। बट अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को भी इंट्रोड्यूस करें और क्रिप्टो करेंसीज को भी मैं कहूँगी उसके यूसेज को भी बढ़ा रहे हैं फॉर द एनर्जी ट्रेड्स। यस, सो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी हमने देखा है कि काफ़ी क्रिप्टोज का यूज़ होता है और बहुत लोग सोच भी रहे हैं। एंड एज पर रिपोर्ट बाय रॉयटर्स, जो भी चाइनीज़ बायर्स है फॉर एग्जांपल, वो जो रशियन ऑयल है उसे बाय कर सकते हैं इन युआन, तो वो जो भी ऑफशोर ट्रेडिंग कंपनीज होगी उनको पे कर सकते हैं इन युआन, और फिर जो इंटरमीडिएट होगा वो युआन को कन्वर्ट करेगा इनटू क्रिप्टो, और क्रिप्टो को फिर वो बाद में they can exchange it with rubles, Russian rubles, and this is how they can also bypass the traditional banking networks. Transactions can bypass. Moving on, Lazarus Group becomes $1 billion Bitcoin whale after converting. Arkham report. So Arkham Intelligence की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि पहले तो FBI की रिपोर्ट आई थी कि जो $1.4 बिलियन का बाइबिट का हैक हुआ था उसके पीछे लजारस ग्रुप है नॉर्थ कोरिया का, और सिर्फ बाइबिट ही नहीं, ऐसे बहुत हैक्स है जिनके पीछे नॉर्थ कोरियन जो हैकर ग्रुप है लजारस, उसका नाम आ रहा है। तो अभी आर्कम इंटेलिजेंस की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब लजारस ग्रुप यानी कि नॉर्थ कोरिया अब एक बिटकॉइन वेल बन चुका है, क्योंकि उसके पास $1 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन है थ्रू हैक्स एंड ट्रू। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि एक साइबर क्राइम ग्रुप जो है उसके पास बिटकॉइंस है मोर देन भूटान एंड एल साल्वाडोर। भूटान की बात करें तो भूटान के पास कुछ 13,000 BTCs हैं, वहीं एल साल्वाडोर के पास 6,089 BTCs हैं। और ये मैं कहूँगी कि जो इनका स्टैश है लजारस ग्रुप का वो बड़ा आफ्टर द बाइबिट हैक, जिसमें $1.4 बिलियन के इथीरियम को चुराया गया और वो इथीरियम को कन्वर्ट कर दिया गया है बिटकॉइन में, इसीलिए उनका जो बिटकॉइन का स्टैश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो अब रिसेंटली वो सिर्फ इट इज़ बिहाइंड द 5 नेशंस और द 4 नेशंस वी कैन से US, चाइना, UK एंड यूक्रेन। उसके बाद फिर अब नॉर्थ कोरिया आता है जो जिसके पास $1 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस है। So that's all in this episode of Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3 TV. And for more information stories, log on to our website www.3verstv.io or scan the QR code and have a great weekend.